Good morning, everyone. I hope you all are doing good and listening the lectures carefully. All right. So today we'll be completing the chapter number 4, that is your climate. We started climate chapter number 4, class 9th geography, and we began understanding with basic terminologies what is the meaning of the word climate, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही cover up करते हैं. Whenever we study, we cover up the basic terminologies. What is the meaning of the word climate, then what is the meaning of the word weather, and we saw that there exists a difference between both of these terms, climate और weather. दोनों में ही difference हमने देखा था, right? And then we moved ahead understanding the difference that climate is the sum total of all the weather conditions and the variations over a large area for a very long period of time. On the other hand, if we see weather, it refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. That means यहाँ पर हम एक specific point of time की बात करते हैं. Whereas if we talk about climate, then climate में हम weather conditions को record करते हैं for a very long period of time, say for 30 years, and after that हम उसकी studies को compile करते हैं, and then we come to know that उस particular place का किस type का climate है. Then we studied the elements of weather and climate, and we covered these pointers. We moved ahead understanding what is the meaning of the word मौसम, right? Then describing the climate of India as the monsoon type of climate. Then we moved ahead understanding the रेनफॉल पैटर्न की. हमने इस पर्टिकुलर मैप से आपको ये बताया गया था कि रेनफॉल जो है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट आपकी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिड्यूस होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है. बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पर ईस्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, एंड एज सून एज द विंड स्टार्ट मूविंग अहेड, वो मॉइस्चर, उनमें जितना भी मॉइस्चर होता है वो कम होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, एंड अल्टीमेटली यू विल सी दैट हम नॉर्थ वेस्ट साइड आते आते मॉइस्चर लेडन विंड्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं. दैट इज वाई आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है. क्लियर? ओके, देन वी मूव अहेड discussing about some of the questions and given you the assignment to find out the answers of these two questions. Then climatic controls. What are the climatic controls that we discussed? Latitude, altitude, pressure, and wind system, whereby we studied about the high pressure regions, low pressure region, how the movement of wind takes place from high pressure areas to low pressure areas. Then distance from the sea, that is what is called as continentality, ocean currents, relief features. Then we studied these diagrams, understanding all the factors, and then we moved ahead understanding all these ocean currents भी हमने discuss करा था, कितने types की currents होती है, right? So we discussed this much portion, and we further moved understanding what are the factors affecting India's climate, latitude, altitude, pressure and winds. जहां पर हमने pressure and surface winds, upper air circulation, western cyclonic disturbances and tropical cyclones की भी study करी थी. Western cyclonic disturbances आपके westerly jet streams की बात करी थी. Tropical cyclones में हमने easterly jet streams की बात करी थी, right? I hope this much has been cleared to you. Coriolis force, the force which actually deflects the earth, which actually deflects the wind's direction, जो कि wind के direction को deflect कर देता है. Then we talked about western cyclonic disturbances क्या होते हैं, tropical cyclones क्या होते हैं, Indian monsoon पर फिर हमने discussion करा था, and we saw the mechanism of the Indian monsoon. Indian monsoon के mechanism को हमने discuss करा. हमने कुछ facts study करे थे. These were the important and the following facts that we discussed. ये facts जो है वो important है because whenever you will be writing answer in the question, आपसे ये question पूछा जाता है कि क्या क्या facts हैं जो हमारे पूरे monsoon के mechanism को explain करते हैं, और at times it can also be asked explain the mechanism of monsoon in India.
तो आप ये सारे के सारे फैक्टर्स लिख कर आएंगे, ठीक है. यू हैव टू राइट ऑल दीज फैक्टर्स. We discussed one by one the differential heating and cooling of the land and water, shifting of the position of ITCZ, then high pressure area east of Madagascar. Madagascar island की आपको location पता होनी चाहिए. Tibetan plateau gets intensely heated during the summers. And also we discussed about the movement of the westerly jet streams and tropical easterly jet streams over the Indian peninsula. We talked about एल नीनो. हमने एल नीनो के बारे में बात करी थी, जो कि एक सदर्न ऑस्किलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था. Ahead we move discussing the onset of the monsoon. Monsoon का onset हमने देखा था 120 days, early June to mid of September. Burst of monsoon की बात करी थी. कुछ important terms हमने देखे थे. हमने pre monsoon showers की बात करी थी, जो कि आपके mango ripening में help करते हैं. Also they are called as the mango showers. I hope you remember all these pointers. And further we discussed about the withdrawal or the retreat of the monsoon. हमारी कंट्री से मॉनसून किस तरीके से बाहर होता है. withdrawal or retreat of the monsoon is a very gradual process. एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 होगा, ठीक है. Okay, then we also studied that islands जो है उनको सबसे पहले आप देखते हैं मॉनसून शावर्स मिलती है, बिकॉज अगर आप मैप देखेंगे तो यू नो कि आपके यहाँ पर आइलैंड्स प्रेजेंट हैं. एंड एज सून एज द साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रांचेस एंटर्स इंडिया, वो सबसे पहले यहाँ पर हिट करती है एंड देन दे हिट योर सदर्न टिप, राइट. सो वी डिस्कस्ड ऑल दिस एंड वी वर डिस्कसिंग द सीजन्स. सीजन्स में हमने डिस्कस कर लिए थे आपके कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज योर विंटर सीजन, एंड वी सॉ द सिचुएशंस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर as well as the situation of the southern hemisphere, right. Then we discussed about your hot weather season, that is your summer season. Summer season में क्या रहता है, sun की position क्या होती है, ठीक है. All right. Also we completed the advancing monsoon, that is your the rainy season. हमने rainy season भी cover करा था, जहां पर हमने देखा था कि साउथ वेस्ट मॉनसून आपके इंडिया में आते हैं और आने के बाद में वेदर कंडीशंस पूरी तरीके से चेंज हो जाती है. वेस्टर्न घाट्स पे सबसे ज्यादा बारिश मिलेगी आपको, बिकॉज ये आपका कौन सा साइड है, विंड बर्ड साइड है, यहाँ पर साउथ वेस्ट मॉनसून आकर के बारिश देते हैं, ठीक है. सो वी डिस्कस दिस complete paragraph and we completed the last lecture this particular topic. Today we will be moving ahead discussing the rest of the portion of the chapter, that is the retreating or the post monsoons, that is your transition season. इसको transition season बोला जाता है. This is called as what? This is called as the transition season. During October November, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains becomes weaker. As you all know, आप सबको ये बात पता है कि सन की जो पोजीशन है वो शिफ्ट होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड दैट इज व्हाई हम समर सीजन या फिर विंटर सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं, राइट. जब आपका ओवरहेड होता है सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वी एक्सपीरियंस द समर सीजन, राइट. ये आप ऑलरेडी करके आए हैं आपकी प्रीवियस क्लासेस में. यू हैव स्टडीड अबाउट द दैट पर्टिकुलर डायग्राम, जहां पर आप देखते हैं कि एक्सेस ऑफ द अर्थ और मून किस तरीके से जो है शिफ्ट होता है. सन रेज जब कंप्लीटली आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी तब आपके समर्स होते हैं. एंड एज सुन एज आप देखें कि जब आपकी अर्थ की एक्सेस, अर्थ रोटेट करती है एंड जब सन रेज आपके सदर्न हेमिस्फीयर में होंगी तो आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, राइट. सो आप देखते हैं कि ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर का जो टाइम पीरियड है, यू नो आप ये सब चीजें एक्सपीरियंस करते हैं. इट इज द मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि आप ऑब्जर्व करें. विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड्स द साउथ, तो अक्टूबर नवंबर का जो टाइम पीरियड है, इस समय आप ये देखेंगे कि जो सन है उसका मूवमेंट साउथ में हो जाता है, दैट इज वो सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाएगा. द मॉनसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर. दिस इज द अंडरस्टैंडेबल पोर्शन, बिकॉज अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है. द कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू, बिकॉज अभी तक हमारी कंट्री में क्या था, समर सीजन था, ठीक है. अभी तक हमारी कंट्री में क्या था, समर सीजन था. एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें पता है कि नदन यहाँ पर हमारे पूरे टेम्परेचर हाई था, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर कंडीशन थी. वेन एवर टेम्परेचर इज हाई, pressure is low, right. So
वापस से आप लाइन को रीड करें, द मॉनसून ट्रफ और लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नदर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर। दैट मीन्स कि ये वाली सिचुएशन है जब टेम्परेचर हाई है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा है, ये सिचुएशंस आपकी वीक होने लगती है। कब वीक होने लगती है? अक्टूबर नवंबर टाइम में, ठीक है। जब अक्टूबर नवंबर का मंथ आ जाता है तब ये सिचुएशंस आपकी वीक होने लगती हैं। क्लियर? वीक होने लगती है एंड दिस ग्रेजुअली रिप्लेसेस एंड इट इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम। और आप धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि अब आप देखते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर्स जो है वो नदन है, आपका जो नदन प्लेन्स वाला रीजन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, बिकॉज अब आपके विंटर सीजन आने वाला है। तो टेम्परेचर्स आपके कम होने लगते हैं, तो जब टेम्परेचर कम होने लगेगा तो आप देखेंगे प्रेशर हाई हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, राइट? हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता जाएगा। ऑल्सो आप ये देखेंगे साथ ही साथ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग वीकन, स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। अब सीधी सी बात है, अब आपका मानसून जो है वो विड्रॉल कर रहा है। हम आपके मानसून विड्रॉल ऑफ मानसून पढ़ के आए हैं, रिट्रीटिंग मानसून को पढ़ के आए हैं। सो अब आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से मानसून रिट्रीट होने लगता है। एंड वी ऑलरेडी सॉ कि मॉनसून का जो रिट्रीट है वो आपके नदर्न पार्ट से स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से स्टार्ट होने लगता है, धीरे धीरे होता है आपका विड्रॉल ऑफ द मॉनसून, एकदम से नहीं होगा। इट इज वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले 1 सितंबर यहाँ लिखा है। सो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से ये ग्रेजुअली स्टार्ट होता है विड्रॉल होना, स्लोली एंड ग्रेजुअली। आप देखें 15 सितंबर तक यहाँ तक ये पूरा विड्रॉल हो चुका होता है, अब यहाँ कोई बारिश नहीं होगी। फर्दर इफ यू सी, ये 1 अक्टूबर तक यहाँ से विड्रॉल हो जाएगा एंड ग्रेजुअली हम देखते हैं कि हमारी कंट्री से ये पूरी तरीके से विड्रॉल हो जाता है बाय दिसंबर। तो दिसंबर तक आपका मॉनसून आपकी कंट्री से कंप्लीटली विड्रॉल हो जाता है, राइट? ओके, देन वी मूव अहेड द नेक्स्ट लाइन। आई होप ये आपको पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी डिस्कस दैट अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम पीरियड होता है, यू सी दैट इस समय जो सन होता है दैट स्टार्ट्स इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। द मॉनसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर। अभी तक क्योंकि आपके कंट्री में समर सिचुएशंस थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई थे, तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर सिचुएशंस बनी हुई थी। बट अब धीरे धीरे आप ये देखते हैं कि टेम्परेचर्स डाउन होने लगते हैं, तो यहाँ पर जब टेम्परेचर डाउन होने लगेगा तो हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि आपका साउथ वेस्ट मानसून कंट्री के बाहर जाएगा। By the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plains. तो पूरे के पूरे आपके नदर्न प्लेन से अक्टूबर की शुरुआत तक आप देखते हैं कि नदर्न प्लेन से पूरा मानसून आपका विड्रॉल हो चुका होता है। इफ यू कैन चेक दिस पर्टिकुलर मैप, आप ये मैप अपनी अपनी बुक्स में देखें तो यहाँ देखिए ये 1 अक्टूबर है और ये आपका पूरा नदर्न प्लेन रीजन है। दिस यू नो दिस इज योर नदर्न प्लेन्स। तो बाय अक्टूबर, एक स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर में आप देखते हैं कि पूरा नदर्न प्लेन से आपका मॉनसून विड्रॉ हो चुका होता है, ठीक है। The months of October, November, they form a period of transition from hot rainy season to dry winter conditions. Basically, October, November का जो time period होता है, ये एक transition period कहलाता है। This is actually called as a transition season because इस समय क्या हो रहा है, अब आपके धीरे धीरे summers जा रहे हैं और winters आ रहे हैं, ठीक है। तो summers धीरे धीरे आपके खत्म हो रहे हैं, पर इसमें भी आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर के टाइम में भी यू सी कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर स्टिल रिमेन्स हाई, बिकॉज आप देखेंगे कि अक्टूबर में दिन में बहुत आपको गर्मी मिलेगी, टेम्परेचर्स विल रिमेन हाई ड्यूरिंग द डे टाइम, और रात आते आते या इवनिंग होते होते यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर्स आर एक्चुअली डिक्रीजिंग और इवनिंग्स जो है वो थोड़ी थोड़ी ठंडी होती जाती है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ फेज ऑफ ट्रांजिशन, जहां पर आप देखते हैं कि समर्स जो है थोड़े थोड़े कम होने लग रहे हैं, सन हीट कम हो रही है, सन हीट का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और विंटर्स की प्रेजेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। सो एक तरीके से ट्रांजिशन जोन कहलाता है, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड्स कहलाते हैं अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड।
The retreat of the monsoon is marked by the clear skies and rise in temperature. तो अगर हम retreat of the monsoon की बात करें, so retreat of the monsoon is actually marked by the clear skies because इस समय अब आपके कोई clouds नहीं है. There will be no formation of clouds. Reason being because now your monsoon is actually withdrawing from the country. So you will find the skies are very very clear. There will be rise in temperatures. यानी कि दिन का जो टेम्परेचर होगा, जो डे टेम्परेचर्स होंगे वो आपके बहुत ज्यादा हाई रहेंगे. ठीक है, स्टिल डे टेम्परेचर्स आर फाउंड टू बी वेरी हाई. बट आप देखते हैं कि ग्रेजुअली जैसे जैसे शाम होने लगती है, थोड़ी थोड़ी ठंडक होने लगती है. आपके फैमिलीज में भी ये डिस्कशन होते होंगे कि दिन में बहुत गर्मी है, अब धीरे धीरे शाम हो रही है, तो शाम तक थोड़ी ठंडक हो जाती है. राइट. सो दैट इज योर ट्रांजिशन पीरियड. वो एग्जैक्टली ट्रांजिशन पीरियड होता है जब आपका समर्स थोड़ा सा इन्फ्लुएंस समर का कम हो रहा है और विंटर्स का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है. While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. The land is still moist owing to the conditions of high temperature and humidity. The weather becomes rather oppressive during the day. तो डे टाइम्स में आप देखते हैं कि वेदर एज सच समर्स वाली सिचुएशन ही आपको लगेंगी, बहुत टेम्परेचर हाई होता है बिकॉज स्टिल देर एग्जिस्ट द मॉइस्चरनेस एग्जिस्ट करती है, बहुत ह्यूमिडिटी रहती है. ठीक है, दिस इज कॉमनली नोन एज द अक्टूबर हीट. ठीक है, तो इसको बोला जाता है अक्टूबर हीट. राइट. In the second half of the October, the mercury begins to fall rapidly in the northern India. So gradually आप ये देखते हैं कि northern part of India के अंदर धीरे धीरे अक्टूबर की सेकेंड हाफ तक आते आते आप ये देखेंगे कि northern part में mercury जो होता है वो फॉल करने लगता है. इट स्टार्ट्स गेटिंग धीरे धीरे फॉल करने लगेगा. डाउन टेम्परेचर जो है वो आपके कम होने लगेंगे. The low pressure conditions over the northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. अगर आप देखें, so what happens? This is your what? This is your Bay of Bengal. तो अभी क्योंकि summers exist कर रहे थे यहाँ पर, so there was सिंस वी नो कि आपका जो पूरा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री है यहाँ पर अभी तक टेम्परेचर आपके हाई थे बिकॉज समर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो रखी थी. ठीक है, लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो रखी थी. बट ग्रेजुअली आप ये देखते हैं कि समर्स अब कंट्री से धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तो आप ये देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेंगे, कम होने लगेंगे. बाय इवनिंग इट हैपेंस. अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, एंड हाई प्रेशर रीजन जो है वो क्रिएट होने लगता है. और ये जो लो प्रेशर वाली सिचुएशंस हैं वो कहाँ पर चली जाएंगी? आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ. अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होंगी. बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन द लेक्चर प्रीवियसली दैट लैंड की और वाटर की प्रॉपर्टी होती है. लैंड जो होता है वो बहुत जल्दी से, वेरी क्विकली, वेरी रैपिडली गर्म हो जाता है और फिर ठंडा भी हो जाता है. ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा बहुत जल्दी से और फिर हीट रिलीज भी कर देता है. लेकिन जो वाटर होता है उसमें ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है. ठीक है, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें चेंज आता है. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अब जल्दी से लैंड ने तो अपने टेम्परेचर को कम कर लिया है. ठीक है, अब वाटर जो है उसके थोड़े थोड़े टेम्परेचर राइज हो रहे हैं एज कंपेयर टू द लैंड सर. तो लैंड मास की कंपैरिजन में आप देखेंगे कि वाटर का टेम्परेचर राइज हो जाता है, हल्का सा गर्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होंगी. भाई अगर यहाँ हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो रही है तो कहीं ना कहीं लो प्रेशर कंडीशंस भी डेवलप होंगी. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि लो प्रेशर कंडीशंस कहीं डेवलप ही नहीं हो. देयर विल बी सम प्लेस जहाँ लो प्रेशर कंडीशंस का डेवलपमेंट होगा. राइट. सो व्हाट हैपेंस? अब क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में आप देखते हैं कि हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गई हैं, तो लो प्रेशर कंडीशंस आपको अब आपकी वाटर बॉडी में मिलेंगी. ठीक है, सो बे ऑफ बंगाल में आपको ये देखने को मिलता है. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea. और ये जो शिफ्ट हो रहा है आपके प्रेशर में, ये जो शिफ्ट आ रहा है प्रेशर कंडीशंस में, कि यहाँ पर बेसिकली हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है. ठीक है, अभी आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है यहाँ पर भी क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो आप देखते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स वाला जो यहाँ पर एरिया है विच ओरिजिनेट, यहाँ देखो क्या कह रही है लाइन, दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी. ठीक है, जो कि कहाँ ओरिजिनेट करते हैं? फिर अंडमान सी में. क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं, तो विंड्स जो है वो धीरे धीरे आप देखेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करती है.
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं अंडमान वाले रीजन में, ठीक है। These cyclones generally cross the eastern coast of India, which cause heavy and widespread rain. और आप ये देखते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में यहाँ पर जो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, दे एक्चुअली मूव एंड दे एक्चुअली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आपके यहाँ तक आते हैं और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तक पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पर ये साइक्लोन्स आने की वजह से आप ये देखेंगे कि बहुत हैवी रेनफॉल्स होती है, ठीक है। द थिकली पॉपुलेटेड deltas of the Godavari, Krishna, Kaveri, they are frequently struck by the cyclones. और आप देखते हैं कि आपको पता है यहाँ पे कावेरी रिवर है, यहाँ से आपकी गोदावरी रिवर है, यहाँ पर महानदी का डेल्टा है। सो ये जितने भी रीजन्स हैं यहाँ पर पॉपुलेशन आपको पता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, बिकॉज दीज आर द कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होगी ही, है ना। वाटर पास में है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो होती है, यहाँ पर फिशिंग हो गया, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही होंगी। सो नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जो है बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही है, पॉपुलेटेड रीजन है ये बहुत ज्यादा। यहाँ पर जब साइक्लोन्स रीच करते हैं, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो आप देखते हैं कि यहाँ फ्लड्स सिचुएशन आ जाती है एंड इट कॉज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन। बहुत हैवी डिस्ट्रक्शन होते हैं, डिवास्टेटिंग डिस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, which cause great damage to life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha, West Bengal and Bangladesh. कई बार आप देखेंगे कि ये साइक्लोन्स जो है आपके कोस्ट ऑफ उड़ीसा तक आ जाते हैं, और ये जो पूरा का बांग्लादेश का कोस्ट है या वेस्ट बंगाल का कोस्ट है, यहाँ तक ये साइक्लोन्स रीच करते हैं, ठीक है। The bulk of rainfall of the Coromandel coast is derived from depressions and cyclones. बाकी जो कोरामंडल कोस्ट है वहां पर जो रेनफॉल आती है that is actually derived from the depressions and the cyclones, ठीक है। तो साइक्लोनिक रेनफॉल इसको बोलते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट इज योर ट्रांजिशन पीरियड। ये ट्रांजिशन पीरियड होता है जहां पर आप देखेंगे कि प्रेशर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, सीजन में चेंज आ रहा है, समर्स आपके समर्स का इन्फ्लुएंस, हीट का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, विंटर्स आपके एंटर कर रहे हैं। सो ये ट्रांजिशन जोन कहलाएगा। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। प्लीज डू लिसन द लेक्चर वेरी केयरफुली, आप ध्यान से इसको सुने। मैप्स देखिए, मैप्स आपको बता रहे हैं, देखिए ये वाला जो मैप है आपका पेज नंबर 36 पर, सीजनल रेनफॉल इन जून एंड सितंबर। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी रेनफॉल हो रही है। यहाँ पर आप देखें सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। सो दीज आर द मैप्स, यू हैव टू एक्चुअली लुक एट दीज मैप्स टू स्टडी, बिकॉज अगर आप विदाउट मैप्स स्टडी करेंगे तो आपको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। सो विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक ऑफ सीजन्स। हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में हमारे सीजन्स वाला जो मेजर टॉपिक है इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। हम इसके साथ में हम सीजन्स वाला जो टॉपिक है उसको खत्म कर दिया है। वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर सीजन्स। हमने सीजन्स वाले टॉपिक को ऑलरेडी रिवाइज भी कर लिया अभी, ठीक है। सो रिट्रीटिंग या फिर इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट मॉनसून बोला जाता है, इसको ट्रांजिशन सीजन बोलते हैं, राइट। प्लीज ध्यान से सुने, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ये। इसमें जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपका टर्म है अक्टूबर हीट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो प्लीज इसको आप ध्यान से रीड करें। नाउ वी कम टू द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर। अब हम आगे चलते हैं एंड वी कम टू द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर, ओके। एंड we come to the topic distribution of rainfall. आई होप अब आपको इतना आपने क्योंकि स्टडी कर लिया है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भी मैंने आपसे कई बार डिस्कस करा है while you were discussing the maps। अभी भी मैंने आपको बताया था, in the recap also we discussed how the distribution of rainfall actually decreases from east to west, ठीक है। सो आपको इतना डिफिकल्ट अब नहीं लगेंगे ये टॉपिक्स। Parts of western coast and the northeastern India, they receive over about 400 centimeters of rainfall annually. अगर आप देखें तो पूरे साल में बेसिकली जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न वाला इंडिया का रीजन है, बेसिकली अगर आप देखेंगे जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है
एंड दिस इज योर वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन। तो यहाँ पर आप देखते हैं लगभग लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, बहुत हैवी रेनफॉल्स होती है, बहुत हैवी रेनफॉल्स। ये मैप देखेंगे आप, और इस मैप में आप देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी हैवी रेनफॉल्स हैं, बिकॉज दिस इज द मैप शोइंग यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अबव 400 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, सो अबव 400 ऑफ सेंटीमीटर रेनफॉल कैन बी सीन हियर एंड इन दिस पर्टिकुलर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, या आपकी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पर भी आपके जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी रेनफॉल हो रही है। सो दीज आर द रीजन्स जहां पर 400 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल मिलती है। क्लियर? ओके। और रीजन क्या है, क्यों मिलती है रेनफॉल यहाँ पर? बिकॉज आपको पता है, आई होप अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एज सून एज 0 डिग्री इक्वेटर से आपके विंड्स क्रॉस करती हैं, और विंड्स क्रॉस करके जब हमारी कंट्री में ये एंटर करती हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये क्या कहलाती हैं? आपकी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहलाती हैं। और यहाँ पर सबसे पहले ये बारिश देती हैं, इस पूरे रीजन में सबसे पहले रेनफॉल होंगी। ऑल्सो ये साउथ वेस्ट ब्रांच जो है आपकी मानसून की, ये यहाँ पर आपके मुंबई को हिट करती है। तो ये पूरा का पूरा आपके यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट्स पे जैसे ही आप ये देख रहे हैं कि ये साउथ वेस्ट मानसून आपका जाता है, ये वेस्टर्न घाट से स्ट्राइक करेगा, और इस पूरे रीजन में आके देखेंगे आप रेनफॉल होती है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हैवी रेनफॉल्स होंगी, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, अरेबियन सी ब्रांच। आगे आप देखेंगे कि विंड्स मूव करती हैं फर्दर, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है ये मूव करेगी एंड इट रीचेस हियर इन योर रीजन। यहाँ से ये एंटर करती है। यहाँ आप देखते हैं मेघालय आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेघालय, अगेन दिस इज डार्क पर्पल, पर्पल हो रखा है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल्स है, रीजन बीइंग यहाँ पर आपके माउंटेन्स हैं, उनका ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है। तो जैसे ही आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच अंदर घुसती है, वो स्ट्राइक कर जाती है इन माउंटेन्स से, एंड इसी वजह से, क्योंकि अभी तक ये स्ट्राइक किसी से करी ही नहीं है, और आपको पता है कि यहाँ पर जो, यहाँ पर क्या है, वाटर बॉडी है, तो ये यहाँ से जो है मॉइस्चर लेके जा रही है विंड्स, और ये जाकर के अभी सिर्फ यही स्ट्राइक करेंगी, सबसे पहले यही स्ट्राइक करती है। सिंस ये स्ट्राइकिंग फॉर द फर्स्ट ओवर हियर, यहाँ पर हैवी रेनफॉल्स मिलेंगी। However, it is less than 60 centimeters in western Rajasthan and the adjoining parts of Gujarat, Haryana, and Punjab. Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau and east of the Sahyadris. तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस मैप में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वाला जो आपका रीजन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है। रीजन बीइंग आपको बता दिया गया है, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि जैसे ही विंड्स आगे मूव करती है, इनका जो मॉइस्चर है वो पूरा ड्रेन होता जाता है, और जब तक कि विंड्स यहाँ पर पहुंचती हैं, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते पूरा मॉइस्चर ड्रेन हो जाएगा। बिकॉज ये सीधी सी बात है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है वाटर बॉडी की, वाटर बॉडी की एग्जिस्टेंस यहाँ है। तो ये बे ऑफ बंगाल जो की ब्रांच आ रही है, ये मॉइस्चर यहीं से लेकर के आती है, ठीक है। और इसलिए आप ये देखते हैं कि ये वहां तक पहुंचते पहुंचते उनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ तक रेनफॉल्स नहीं हो पाती है। ऑल्सो देर इज वन रीजन कि यहाँ पर आपके पास में बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस भी नहीं है। ओनली माउंटेन रेंज यू हैव हियर इज दी अरावलीज। यहाँ पर अरावलीज ही प्रेजेंट है, ठीक है, अरावली रेंज प्रेजेंट है। सो अरावली से आपकी ये आती है विंड्स, अरावली से टकराती है, और राजस्थान के ईस्टर्न, जो राजस्थान का ईस्टर्न पोर्शन है, वहां बारिश देंगे। राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है, बिकॉज जो आपकी अरावली रेंजेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। तो जब विंड्स आ रही हैं, तो विंड्स आकर के बेसिकली स्ट्राइक करती हैं आपकी इन अरावली रेंजेस से यहाँ पर। तो ये बेसिकली आप देखते हैं कि इसी पोर्शन में फिर बारिश होगी, यहीं पर बारिश होती है, ठीक है, इसी रीजन में बारिश होगी। क्योंकि ये कौन सा आपका रीजन हो गया, ये आपका विंडवर्ड साइड हो गया। तो क्योंकि अभी अरावली जाके कुछ इस तरीके से हैं, विंड्स आ रही हैं, विंड्स आकर के अरावली से स्ट्राइक करती, तो इस रीजन में बारिश देंगी। एंड दिस इज योर बेसिकली व्हाट, राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। तो यही बारिश होती है। वेस्टर्न पार्ट तक आप देखते हैं कि विंड्स जाती ही नहीं है, क्योंकि वो लीवर्ड साइड हो जाता है माउंटेन्स का, है ना। आपको पता है माउंटेन्स के दो साइड होते हैं, एक लीवर्ड साइड और एक होता है आपका विंडवर्ड साइड। जिस तरफ आपके
मॉनसून की विंड्स स्ट्राइक करती हैं और बारिश देती हैं, वो साइड आपका विंडवर्ड साइड हो जाता है। और जहां पर मॉनसून विंड्स या मॉइस्चर लेडेड विंड्स स्ट्राइक नहीं करती हैं, दैट इज योर लीवर्ड साइड। ठीक है। सो अल्टीमेटली आप देखते हैं कि इस पूरे रीजन में बारिश कम होती है। ऑल्सो जो आपका डेक्कन प्लेटो रीजन है, यहाँ पर ये जो सेंटर वाला ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत कम बारिश होती है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो आपकी ब्रांच शिफ्ट होके जा रही है, जो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, वो यहाँ स्ट्राइक नहीं करती है। वो स्ट्राइक ही नहीं कर रही है आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर। इट डजंट स्ट्राइक्स ओवर हियर। ठीक है, वो डायरेक्टली मूव कर जाती है आगे। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है उनको बारिश नहीं मिलती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। They doesn't receive any rainfall from the बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, बिकॉज विंड्स जो है वो सीधा आगे मूव कर जाती है। ओके, वाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल? अब ऐसा क्या कारण है कि रीजन्स जो है वो बेसिकली रेनफॉल यहाँ पर कम होती है? अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर भी रेनफॉल कम होगी जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, और ऑल ओवर द कंट्री आप देखते हैं कि मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है। स्नोफॉल जो है वो खाली आपको हिमालयन रीजन्स में ही मिलेगी, स्नोफॉल और आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। Owing to the nature of the monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. ठीक है, क्योंकि मानसून जो है वो आपका एक हमने पढ़ा था कि मानसून का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, हर साल फ्लक्चुएट होता है। आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं कि कितना अच्छी बारिश होगी, इस बार ज्यादा अच्छी बारिश नहीं होगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा ये वेरिएबल रहता है, ईयर टू ईयर ये चेंज होता है। Variability is very high in the regions of the low rainfall, such as parts of Rajasthan, Gujarat, and the leeward side of the Western Ghats. तो ऐसे regions जहां पर ऑलरेडी बारिश बहुत कम होती है, वहां पर और ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, वेरिएबिलिटी रहती है कि अगले साल जो भी बारिश होगी वो क्या अच्छी होगी या नहीं होगी। ठीक है। As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by the floods, और जो एरियाज हैं जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई होती है वहां पर ज्यादातर ये रहता ही है, क्योंकि हाई रेनफॉल रीजन है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दे विल गेट अफेक्ट बाय फ्लड्स। हर साल फ्लड्स आते हैं, हर साल, एवरी ईयर। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्राउट प्रोन, और ऐसे एरिया जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है वो ड्राउट प्रोन रीजन होते हैं। ड्रॉट प्रोन रीजन बेसिकली वहां सूखा पड़ जाता है। आपने सुना होगा कि सूखा पड़ा हुआ है। सूखा क्यों पड़ा है? बिकॉज बारिश ही नहीं हुई है, तो आप वाटर स्टोर कैसे करेंगे? ठीक है। सो ड्रॉट इज बेसिकली योर सूखा पड़ना। सो विद दिस वी कंप्लीट योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल टॉपिक। हम इसके साथ में आपका रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक फिनिश करते हैं।